वेलकम टू आवर शो हैविंग फेथ। आज हम एक ऐसा यूनिक टॉपिक लेके आए हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में बेनिफिट करेगा। आज हमारे खास गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर ईशू शर्मा। So देख लो, हमारे जो डॉक्टर हैं वो खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Thank you so much having me on the show. Yes, and he has an experience of 11 years in this field. So आपसे बहुत सारी information जो है वो हम gather करेंगे, क्योंकि दान जो teeth है are important for everyone of every age group, है ना? So फटाफट let's jump into the questions because introduce तो उन्होंने खुद ही कर लिया अपने आप को। So सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी basic question, ठीक है? क्या डेंटल हैबिट्स जो हैं होनी चाहिए टू प्रमोट गुड ओरल हाइजीन एंड हेल्थ? बेसिक क्वेश्चन एंड सी, आप इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो इट्स नंबर 1 ब्रशिंग, नंबर 2 फ्लॉसिंग, नंबर 3 यूजिंग अ माउथ वॉश, नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्हाट आई फील इज मोटिवेशन. यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू कीप अ गुड ओरल हाइजीन. इफ यू नॉट, मतलब आप अवेयर नहीं हैं या आप चाहते नहीं हैं कि आपको कोई टोके, ओनली देन यू फील लाइक कि मेरे मुंह में स्मेल है तो ओनली देन आई शुड विजिट अ डेंटिस्ट. दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन लाइक लोग रह रही है हमारी इन जनरल सोसाइटी. So coming to the number 1 point, that is brushing. Brushing twice daily, everybody knows. And after meal, after your breakfast is the ideal time to brush, but people have a tendency ki uthe subah and they start brushing. See, this is a cycle. You brush after your breakfast and you brush after your dinner. So you don't need to brush early in the morning. Okay. This is a fact. Like, ये बड़ी important information. This is a very, I mean, but we, हमारा एक दिनचर्या ऐसा है कि we wake up, जब तक हमने ब्रश नहीं किया we don't even feel कि it's morning. Yeah. So this is also a kind of thing, like people should be motivated enough and they should know this kind of thing. Brushing after your breakfast is the ideal time to brush. This is a good point. ये मेरे लिए भी न्यू है क्योंकि बचपन से ये वाला उठो ब्रश करो. This is the idea. This is the idea. Like I mean, you have me on this. Yes. Right. And number 2 is flossing. See, ये West में तो concept है flossing का, but India में we lack. We don't even know what is floss. Most of the time, it's been 11 active years of my practice. I have to tell people how to, like, I tell them to get a floss लेकर आए, and how to use a floss and everything. Education का part नहीं है. Primary health में flossing is not even included. मतलब जो दे रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर या जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, they are not अवेयर अबाउट फ्लॉसिंग. फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो खाना आपके 2 दांतों के बीच में रह जाता है, जो रेगुलर ब्रशिंग से नहीं निकल पाता, फ्लॉसिंग इज द ओनली वे आप वो खाना निकाल सकते हैं, जिससे कैविटी और गम्स की स्वेलिंग एंड माल ओडर जो मुंह में स्मेल रहती है, दैट विल रिड्यूस कंसिडरेबली. आपकी डेंटिस्ट की विजिट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी इफ यू स्टार्ट फ्लॉसिंग थ्राइस अ वीक, मोर देन सफिशिएंट. या एटलीस्ट जिस दिन भी आपने कुछ फाइब्रस खाया है, डू फ्लॉस एट नाइट. Okay. Every day is not required. Every day is no. Yeah, absolutely. Okay. Every day I would recommend also. I mean, if you have that kind of time and you want to invest that kind of thing on your oral health, definitely yes. But thrice a week is minimum. Mandatory. And I'm coming to number 3 is your mouthwashes. Don't use any mouthwash available at a medical store or किसी ऑफर के साथ फ्री आ रहा है तो यू गेट अ माउथ वॉश, पेस्ट के साथ माउथ वॉश फ्री है. डोंट गेट इट, बिकॉज जनरली 95% ऑफ द माउथ वॉशेस हैव अल्कोहल इन इट. हाँ, दिस आई हैव. So list, मतलब I won't again say the name, but most of the mouthwashes have alcohol. Alcohol is equally bad as of any other chemical agent in your mouth. Alcohol is not good for your mouth. Using alcohol based mouthwashes, you will be, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे. अपनी सेंसिटिविटी, अपनी गम्स की जो लाइनिंग है और जो चीक्स की लाइनिंग है उसको आप ज़्यादा सेंसिटिव बनाएंगे अगर आप माउथवॉशेस इतने रेगुलर इंटरवल्स पे आप यूज़ करेंगे. क्लोरेक्सिडिन माउथवॉशेस आई विल 100% recommend. Okay. Sodium fluoride mouthwashes for the kids, chlorhexidine mouthwashes for the adults. This is the gold standard you should follow. And
again 3 to 4 times a week a mouthwash is good. And if possible, every day is also okay. If possible, yeah. At night you can. Okay, perfect. At So night मतलब you can. इतने सारे जो माउथ वॉश की एड्स आती है और हमारे वॉशरूम्स में जो होते हैं, they are not good. They are alcoholic. equally good as sanitizers or anything. Interesting. So coming to the next question, whitening और bleaching, ये काफी नॉट ओनली कि हर इंडस्ट्री में डिपेंड करता है, मीडिया इंडस्ट्री में भी, कि नहीं जी आपके दांत वाइट होने चाहिए. आजकल वो टूथब्रश भी, टूथपेस्ट भी आते हैं जिसमें जी. वाइटनिंग जी. एजेंट हैं और वाइट हो जाएंगे, चमकेंगे True. दांत. तो ये सब जो डेंटिस्ट के पास जाके भी लोग करवाने की कोशिश करते हैं या ये टूथपेस्ट के थ्रू कोशिश करते हैं, इजंट इट हार्मफुल? बेसिक आइडिया ऑफ ब्लीचिंग इज कि जितने फ्री ऑक्सीजन के आयंस हैं, मतलब मैं आई विल नॉट गो इनटू द केमिस्ट्री, कि बेसिकली आपके दांत का शेड जो है दे विल इंप्रूव टू शेड 1 और 2 और 3. जितने साइकिल्स आप डेंटिस्ट से लेंगे उतना शेड इंप्रूव होता रहेगा, बट इवेंचुअली वो दांतों को ब्रिटल ही कर रहा है. जो ऑर्गेनिक कंटेंट है टूथ का, इट बिकम्स वीक. अच्छा. योर टीथ, मतलब आपके दांत ज़्यादा सेंसिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. बिकॉज आई हैव सीन, मतलब लोगों को ऐसे ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं डेंटल ब्लीचिंग से, वो डेंटिस्ट के पास आना ही छोड़ दिया लोगों ने. आई एम ऑल्सो. कोविड के टाइम पे कैफीन की वजह से वो हो गया था, एंड आई वाज सजेस्टेड कि एक तो कोविड में पहले निकलना बहुत वो था, थोड़ा सा जब स्पेस मिली तो गई करवाई, बट उसके बाद जो सेंसिटिविटी थी, इवन हैविंग वाटर, मतलब कोल्ड वाटर ले लिया, कुछ वार्म ले लिया, तो बहुत ऐसे लगता था कुछ एक लेयर ही उतर गई है पूरी. सो यस, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. प्लीज कंटिन्यू. ब्लीचिंग से बिसाइड्स, आई मीन, इफ पीपल आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, regular scaling and polishing is more than sufficient for any ABC, any kind of patient. उसका कोई हार्म नहीं है? उसका बिल्कुल हार्म नहीं. Moreover, it is more beneficial. Okay. Coming to the myths, I will be discussing this certain topic of scaling also. Okay. But मेरा जो concern है patient को, आपका दांत का शेड improve नहीं होगा स्केलिंग से या पॉलिशिंग से. जो आपका रेगुलर दांत का शेड है, that will stay, right? But you need scaling and polishing for keeping your oral health. But coming to the bleaching part, bleaching, unless and until like there is no other option available with your dentist. आपका डेंटिस्ट कोई और ऑप्शन आपको नहीं देता. स्माइल डिजाइन का ऑप्शन, अगर आप शेड इंप्रूव करना चाहते हो, विनियर्स का ऑप्शन, आजकल तो क्राउन्स इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के आर अवेलेबल. अच्छा. व्हेन आई स्टार्टेड 10 years back वो नहीं थी चीजें. Because I have to learn. Change हो रही हैं. They are changing drastically. Okay. I mean, many people of your profession, they come and they get it done. कितने news anchors, कितने people get it done. क्योंकि वो over a period of time bleaching करवा के दांत इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं हम लोगों के, कि ये अगर हम पहले कर देते तो वो इतना ट्रॉमा जो उन्होंने 10 साल 12 साल ब्लीचिंग का लिया, that can be reverted. So basically scaling and polishing जो है वो ज़्यादा safer option है. Must. And one can go for that. Definitely. And वो जो toothpaste आते हैं आजकल, वो मिस हो गया. ये भी, this is also a media campaign चल रहा है. I don't know what is going on with everything they are adding in the toothpaste, bleaching agent भी और नमक भी और लौंग भी, and there are certain toothpaste जो कि sensitivity भी treat कर रहे हैं. लोग डेंटिस्ट के पास जाना कम प्रेफर करते हैं rather than वो होम रेमेडीज और काउंटर टॉप टूथपेस्ट ब्लीचिंग के लिए, सेंसिटिविटी के लिए यूज करके अपना काम अच्छे से. लॉन्ग रन में वो हार्मफुल है. लॉन्ग रन में दे आर नॉट इवन डायग्नोस्ड विद द प्रॉब्लम. वो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट यूज करके या ब्लीचिंग टूथपेस्ट यूज करके दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ जी देखो जी मेरा शेड इतना बढ़िया हो गया. बट लेटर व्हेन गर्ल्स कम कि मेरे को तो अब एसी की हवा भी लग रही है, आई कैन नॉट सिट इन द एसी. इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी. वो 2-wheeler नहीं राइड कर सकते. दे हैव टू कीप स्कार्फ उसके ऊपर हैंकी बांध के देन दे राइड अ 2-wheeler की. इट इज दैट बैड. सोच समझ के अपना टूथपेस्ट ये एडवर्टाइजमेंट्स पे ना जाओ. बिल्कुल ना चाहिए. ओके, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं. आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस इससे जुड़ पाएगी.
कई बार क्या होता है कि एकदम से एक्सट्रीम पेन तो शायद काफी टाइम से भी हो रहा होता है, लोग कई बार डिले भी करते हैं डेंटिस्ट के पास जाना, बट कई बार बहुत एक्सट्रीम पेन हो जाता है, नो मैटर एज ग्रुप, कोई भी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई एल्डरली हो सकता है, एंड एकदम से डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, मे बी बहुत मिडनाइट है या फिर डॉक्टर किसी सर्जरी में बिजी है या डॉक्टर तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। ऐसे टाइम पे कोई आप बेसिक टिप्स या बेसिक थिंग्स बता सकते हो जो कर सकते हैं लोग? बिकॉज यूजुअली कहते हैं लौंग का ऑयल लगा लो, लौंग रख लो, बट आई थिंक वो भी ज़्यादा, लौंग ही फंस जाए अगर कुछ ऐसे टाइम पे तो बहुत पेनफुल हो जाता है। सो बीइंग एन एक्सपर्ट, आप थोड़ी उसके बारे में नॉलेज दो कि ऐसे एक्सट्रीम पेन में फर्स्ट एड जो होती है वो क्या की जाए? सी इफ द पेन अगर रात के समय अगर पेशेंट को ट्रिगर हो गया है, एंड जनरली डेंटल क्लिनिक्स नहीं ओपन होते रात के समय, तो ऑलवेज कीप सम काइंड ऑफ पेन किलर हैंडी इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। सेकेंडली, जिस साइड पे आपको पेन है, अगर आपका राइट साइड पेन कर रहा है, आपका लेफ्ट साइड पेन है, उस साइड पे आपने लेटना नहीं है। अच्छा। नेवर ले डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर साइड। ओके। पेशेंट्स की, हम रात को तो ठीक थे, बट डॉक्टर साहब हम सो गए, हमें नींद आ गई, बट सुबह उठ के देखा था स्वेलिंग थी। व्हाट हैपेंस, योर ब्लड स्टार्ट्स पूलिंग इन दैट स्पेसिफिक एरिया। उस एरिया में जितना ब्लड पूल करेगा, जितना ब्लड फ्लो आएगा, वो उतना पेन विल बी, यू नो, the opposite side पे। Always lay on the opposite side. If you are feeling some kind of swelling आ गई है face पे, some kind of, always use a ice pack. Don't ever use hot packs on your face, especially when you are experiencing dental pain. Always, I would use this platform to tell people कि home remedies में बहुत सारी चीज़ें myths में भी include होंगी अब आगे। लौंग का तेल, there is no research, लौंग का तेल और लौंग रखना या मसाजेस करना दांत के ऊपर, इट विल रिलीव योर पेन। इट विल नॉट। पेंट भी आते हैं, माउथ पेंट्स, काउंटर टॉप, आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। प्लीज डोंट यूज इट जस्ट फॉर द सेक कि आप यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन सेव दैट, यू नो, 500 और 600 रुपीज और 300 रुपीज, एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन जो आपको डेंटिस्ट को दे देनी चाहिए जाके, वो ज्यादा बेटर है। एनी डे बेटर। ओके, तो मतलब एक्सट्रीम पेन में ये सब कर सकते हैं। जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो एक्सट्रीम पेन के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा भी हो जाता है, तो आप बता रहे थे कि सॉल्ट के साथ गार्गल नहीं मुंह में रखना, शायद वाटर पूलिंग एडेड विद लूक वार्म वाटर, बिल्कुल हल्का कोसा पानी, जैसे आप गरारा करते हैं उससे भी कम। ओके, यू कैन पूल इट इन योर माउथ, राइट, एंड अगर ट्रॉमा का केस नहीं, अगर आपको चोट नहीं लगी है फेस पे या मुंह के अंदर, तो ओनली देन, राइट, तो यू कैन पूल योर वाटर एंड यू कैन स्पिट इट आउट। आपको गार्गल नहीं करने हैं, आपको रिंस नहीं करना है, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट पूल सम वार्म सलाइन वाटर इन योर माउथ। वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका पेन, यू नो, आप ऑपरेटर तक जा पाओगे, दैट काइंड कर देगा पेन, दैट काइंड ऑफ रिलीफ कैन बी। वेरी नाइस नॉलेज है ना। ये ऐसी नॉलेज है कि जो डे टू डे लाइफ में अगर जो भी इस टाइम सुन रहे हैं या जिनको भी फॉरवर्ड करेंगे, उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाएगी, और कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो वो ये सब अप्लाई किया जा सकता है। कमिंग टू विजडम टीथ के बारे में हम बात करेंगे। सबको विजडम टूथ का आता ही है, और सूनर और लेटर इससे रिलेटेड कुछ आप बता पाएंगे? विजडम टीथ एक्सट्रैक्शन या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई केस स्टडी, एनीथिंग लाइक, प्लीज गो अहेड। विजडम के साथ एक कहावत, हम जनरली ऑल डेंटिस्ट जब सर्कल में बैठे थे, ना अकल आती आराम से है, ना जाती आराम से है। जिसके विजडम टीथ आ रहे हैं, देर आर वेरी, बहुत ही कम लोग हैं जिनके विजडम टीथ बहुत इजीली रप्ट होंगे। अच्छा। और दे विल नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन। बट जनरली, मतलब मैं जिन बच्चों को देख रहा था और जो बच्चे आज दे आर इन देयर एडल्टहुड, सब ने एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक आध पेशेंट को छोड़ के, एवरी पेशेंट ऑफ माइन हैड विजडम टीथ का पेन, एक साइड ने तो दूसरी साइड, किसी ना किसी विजडम टीथ ने उनको इशू दिया ही दिया। राइट। इसके पीछे एक रीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है कि हमारी डाइट, इट हैज गॉन सॉफ्ट। हम फ्रूट्स को मंच ही नहीं कर रहे हैं। हम फ्रूट लाते हैं, उसको 500 पीसेस में काटेंगे, उसको छीलेंगे एंड उसको 500 बार धोएंगे, एंड वी स्टार्ट चूइंग इट, वो भी बाइट साइजेस में काट के। आई डोंट नो व्हाई एप्पल को हम बाइट साइजेस में काट के खा रहे हैं आजकल। मतलब वो हमारी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में, हमारे पेरेंट्स में भी विजडम का इशू, आई डोंट थिंक एंसेस्टर्स में नहीं। एंसेस्टर्स तो चलो वी आर गोइंग टू फार,
और मेरे पेरेंट्स में भी मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने कोई विजडम का पेन एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बताया कि भाई मेरी अकल जड़ती रही आ रही थी, मेरे को आई हैड टेरिबल पेन व्हेन माय विजडम टीम बिकॉज़ आई हैव गॉट माय ऑल विजडम्स रिमूव्ड। तो वो कहते हैं हमारे टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता था। So it got me thinking कि ऐसा क्या हो गया कि within those 30 years ऐसी क्या चीजें बदल गई हैं? फूड चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, एवरीथिंग इज रिफाइंड। हम ब्रेड्स खा रहे हैं, हम सब कुछ प्रोसेस्ड खा रहे हैं। मतलब वो जो हमने तो फिर भी थोड़ा बहुत किया, आई डोंट नो आज की जनरेशन वो कर रही है नहीं कर रही है, कि हमने पेड़ों से तोड़ के कच्चे अमरूद भी खाए हैं, छलियां खाई हैं। छलियां नहीं है, छलियां आजकल क्या कहूँ मैं, देर इन सुपर स्टोर, वो प्लास्टिक के लिफाफे लगे हुए हैं उसके ऊपर। There is zero such kind of dietary things are zero. I mean, वो यूज नहीं कर रहे हैं, they are not using, they are not, उन्होंने facilitate नहीं कर रहे हैं दांत को कि एक। तो इससे रिलेटेड है विजडम To a large extent, I believe yes. ओके। अब तो मतलब मैंने भी कुछ खासा अच्छे से नहीं खाया क्योंकि मुझे भी ये पेन था। I am not sure, but कई केसेस में you know the arch is very narrow. दांत की प्लेसमेंट ही ऐसी होती है कि it has to be removed surgically. वो हम कुछ नहीं करते, बट इनिशियली आपको फैसिलिटेट तो करना ही पड़ेगा दांत को, कि वो ऊपर का जो गम्स है वो किसी ना किसी तरीके से, वो बच्चे खाते उस साइड से खाने छोड़ देंगे, दे विल नॉट ईट ओनली, दे आर ऑन लिक्विड डाइट बहुत देर तक। फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि अब यू आर लूजिंग वेट एंड दिस एंड दैट, क्योंकि हम तो खा ही नहीं रहे हैं जी, खाना नहीं खा रहे हैं दिस एंड दैट। बट व्हाट आई बिलीव, विजिटिंग योर डेंटिस्ट once a year is important, will solve, I believe, 99% ऑफ योर डेंटल प्रॉब्लम्स। क्योंकि डेंटिस्ट एंटिसिपेट कर लेगा, वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि क्या होने वाला है और क्या इश्यूज इसको आने वाले हैं, और किन इश्यूज से इसको मैं सिंपल डाइट चेंजेस से या रेगुलर हैबिट्स चेंज करके मैं इसको बचा लूंगा। आई कैन सेव अ पेशेंट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। once in an year तो जा ही सकता है इंसान डेंटिस्ट के, and अपने दांतों के लिए तो पक्का ही जाना चाहिए। सो इससे रिलेटेड कोई एनी केस कोई आपके पास हो, कोई इंटरेस्टिंग में, आई विल अगेन कम टू अ केस 2024 का केस है ये। अच्छा। एंड शी इज अ सिंगल मदर। सो द लेडी, उसके कान में कहीं ना कहीं आवाज थी, शी यूज्ड टू फील वॉइसेस इन हर ईयर। She recently got separated from her husband. अच्छा। तो she visited ENTs, she visited homeopathic, she visited Ayurvedic, she visited I believe वो एक और डॉक्टर का नाम लेती है, I don't know that specialty, कोई और ही है। तो सिचुएशन चली गई थी झाड़ फूक तक। अच्छा। हाँ जी, कि वो लेडी सोती थी तो she used to hear those voices in her ear. When she used to wake up, everything is fine. When she is alone, she used to hear those voices. When she is somebody, voices नहीं है। she got a job, तो वो मेरे से फॉर्म भरवाने आए थे डेंटल क्लियरेंस का, यू गिव मी अ फॉर्म, एवरीथिंग वाज फाइन। तो मैंने उस पर लिख दिया कि आई वाज टेलिंग हर आल्सो, मैंने लिख दिया कि आपके ना विजडम्स पे कैविटी है एंड दे आर इन वेरी बैड शेप। कहती क्या, कहती मेरा तो विजडम्स आया नहीं। मैं कहा नहीं मैम, आप आई कैन डू द एक्सरे एंड आई कैन शो यू, आपके विजडम्स हैं, दे आर इन टेरिबल कंडीशन। तो कहती तो इससे क्या क्या हो सकता है। मैं कहा मैम आपके मुंह में स्मेल आ सकती है, हो सकता है कि आपके कान में दर्द हो सकता है कि आपके टेम्पल एरिया में पेन आ रहा हो। कहती हाँ ये तो हो रहा है मेरे साथ, मेरे तो कान में आवाज़ें आ रही हैं, मैं तो अब क्या कहूँ कि प्रेयर करने वाले आ रहे हैं कल मेरे घर, तो वो ऑरा क्लेंजिंग हो रही है मेरे घर में। तो नहीं मैम आप विजडम्स रिमूव करवाओ अपने एंड यू विल बी मोर देन गुड। सेम थिंग हैपेंड। वेरी थर्ड डे शी वाज इन ब्लिस की ऐसा भूत पकड़ा गया, भूत निकाला हमने उस दिन पकड़ के हमने उसका पेशेंट का। एंड शी वाज इन अ ब्लिस एंड शी थैंक्ड उसकी उनके मदर आए स्पेशली कि मैं आई कुड फील कि मेरी डॉटर अब सो पा रही है, शी इज आवाजें बंद हो गई हैं, आवाजें बंद हो गई हैं, एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती थी। क्योंकि वो विजडम टीथ ने पस का इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था उनके इस टेम्पल एरिया में कि शी कुड कंप्रेशंस आने शुरू हो गए थे ईयर ड्रम पे। बट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और थोड़ा शर्लॉक बनना पड़ता है कि पेशेंट जब गाने, जब मैं लेटती हूँ देयर इज वॉइस, मैंने स्टैंड अप देयर इज नो वॉइस। अगेन जब आप लेटेंगे तो प्रेशर चेंज होगा। तो साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू विजिट अ डॉक्टर रादर देन गोइंग फॉर वो झाड़ फूस एंड बाबा जीज एंड एवरीथिंग। प्लीज अवॉइड दैट, विजिट अ डेंटिस्ट वंस अ ईयर। गुड, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग थी ये वाला केस। कमिंग टू
टेक योर टाइम, 1 2 3 4 5, बिकॉज आपके मुंह से अगर हम सुनेंगे और ऑडियंस सुनेगी तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. Myths regarding dental problems and treatments. Any like number of myths. मिथ्स में अभी रिसेंटली मॉर्निंग ओपीडी में एक लेडी आए थे अपने बच्चे को लेके कि इसके दांत पे कीड़ा लगा हुआ है, पर ये तो झड़ ही जाने हैं, इनका तो क्या इलाज कराना है. बट आप देख लो कि इसके दांत बाकी के ठीक आएंगे, पक्के दांत जो आएंगे ठीक आएंगे. मैंने बिना देखे ही आई टोल्ड दैट कि आंटी नहीं आएंगे. कहती क्यों, आपने तो देखा भी नहीं है. मैं कहा आप इन्हीं दांतों के लिए मोटिवेटेड नहीं है, आप बच्चों को ब्रशिंग के लिए नहीं कह रहे हैं. आपने जब दांत में कैविटी लगी आप लेकर ही नहीं आए डेंटिस्ट के पास. आपका बच्चा एक साइड से खाना ही नहीं खा रहा है, आपका बच्चा खा ही राइट साइड से रहा है खाना, उसने यूज ही नहीं करी अपनी लेफ्ट साइड. हाउ डू यू एक्सपेक्ट. ये बहुत बड़ा मिथ है कि दूध के दांत तो झड़ ही जाने, इनको तो ठीक करवाने की जरूरत तो मतलब वो गलने दो. हाँ वो गलने दो क्योंकि झड़ ही जाने हैं. इससे तो बात अच्छे सुंदर दांत आएंगे, वो हम संभाल के रखेंगे. तो अगर आप डे 1 से मोटिवेटेड नहीं है तो आप डे 100 पे भी मोटिवेशन नहीं है आपका, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर ओरल हेल्थ. तो सबसे बड़ा मिथ है कि आपको बच्चों के दांत बचाने हैं, एट एनी कॉस्ट बचाने हैं. वो शेड होंगे, नेचर ने उनको टाइम दिया शेड होने का, उसी टाइम पे शेड होंगे. टिल दैट टाइम, मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हम बच्चे का दांत नहीं निकालना चाहते आपके. सो ट्राई टू सेव देम. अगर वो खराब हो भी गए हैं सम रीजन, तो वी हैव ऑल द आर्मेंटेरियम, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी दीज डेज कि हम बच्चों को यू नो कंफर्टेबल करवा के विद एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग वी कैन डू द डेंटल ट्रीटमेंट. और एक और चीज़ आई वुड बच्चों से कि बच्चों को सुई का डर मत दो. ओके. कि और उनको गिफ्ट्स भी फेवर्स भी मत दो कि तू डेंटल ट्रीटमेंट करा ले तो तेरे को आइसक्रीम दूंगा, या तू चुप हो जा तो मैं तेरे को सुई लगवा लूंगा. वो आप ऐसी एक कंडीशनिंग कर रहे हैं, नेगेटिव कंडीशनिंग बच्चे की, जो कि उसकी अडल्टहुड तक कैरी होगी. वो कभी डेंटिस्ट के पास जाएगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि डेंटिस्ट, सुई, दर्द, जो 3 चीजें 4 चीजें जो एक सर्कल में चलती हैं, वो उसकी साइकी उसी चीजों में घूम रही है. तो चुप कर जा, नहीं तो तेरे को सुई लगवा देंगे. तो आज नंबर कम लाएगा, चल तेरे को सुई लगवा के लाऊं. अच्छा तो डेंटल मेरी आई हैव सीन अ पेरेंट प्रॉमिसिंग देयर किड आईपैड. तो अपनी फीलिंग करवा ले, तो ये रूट कनाल करवा ले अपनी, एंड आई विल गिफ्ट यू आईपैड. Really? A PS was promised, iPad was promised. I don't know. This kind of conditioning should be avoided. आप बच्चा पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है. बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी चीज है, you are responsible for it. And if there is a problem, we have come for a solution. This should be the approach. अप्रोच और कंडीशनिंग, क्योंकि कहीं से नेगेटिव होती है, उन्होंने पेरेंट ने आगे अपने बच्चों को भी बहुत नेगेटिवली कंडीशन किया हुआ है. Very sad. very very sad and very heart breaking I would say. उसके बाद moving to other myths is जैसे like we talked कि लौंग का तेल लगा के या लौंग के मसाजेस करके. ये डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक पे तो लौंग की खुशबू आ रही होती है, अब एक बोतल खोलती है उसमें से लौंग के तेल की खुशबू आ रही है. दैट इज नॉट क्लोव ऑयल. ओके. दैट इज यूजिनॉल. वो हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं आज की डेट में, लाइक वेरी वेरी रेयर. बट एक पेक्यूलियर सी स्मेल है एक डेंटल क्लिनिक में, क्योंकि वो बॉटल कहीं पड़ी हुई है आपके क्लिनिक में, आपको कभी कभी यार यूज के लिए रखनी पड़ती है. दैट विल गिव दैट ओडर. नहीं आप भी तो यूज कर रहे हो लौंग का तेल. मैं क्या मतलब लौंग का तेल नहीं है, वो एक ऐसा ऑयल है विच वी यूज इन सर्टन केसेस ओनली. एक्सट्रैक्शन के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इन दैट केसेस ओनली. बट डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल. नो मसाजेस, नो एसेंशियल ऑयल मसाज इज रिकमेंडेड, नथिंग. अगर आपको मसाज करनी है, रेगुलर कोकोनट ऑयल, add some kind of turmeric. Okay. अगर आपको करनी है, like you feel कि I should massage my gums, this is the way to go. Don't use any kind of commercial things on your mouth. Your mouth is very holy, very safe place for you. Treat it like that. And in a problem, if you face a problem, we are there to help you. Please visit a dentist. Please visit a dentist. Okay, interesting. आपकी केस स्टडी जो थी ना पहले वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. कोई और भी केस स्टडी है जो आप शेयर करना चाहोगे? केस स्टडी आई एम नॉट दैट एस्टैब्लिश्ड. मतलब चलो कोई ऐसा पेशेंट, कोई ऐसा केस जो याद रहता है. हाँ, डेफिनेटली. प्लीज. ऐसी बहुत सारे केसेस हैं, दो एक नहीं है, कि लड़की की हर मदर केम टू आवर क्लिनिक की इसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं. तो माई वाइफ वाज इन अ फिक्स कि आंटी ऐसे कैसे, योर डॉटर इज वेरी गुड लुकिंग एंड शी इज अर्निंग वेरी गुड एंड शी इज वेरी वेल एजुकेटेड, एवरीथिंग इज फाइन, लाइक क्यों? कहते नहीं, लड़के इसको रिजेक्ट करते, इसके दांत आड़े टेढ़े.
तो थोड़ा मेरे को सोशली भी सोचने में थोड़ा इंक्लाइन होना पड़ा कि क्या चल रहा है हमारे, कि अकॉर्डिंग टू द बॉयज शी वॉज नॉट गुड एंड फोटोजेनिक, बिकॉज लड़की की कहीं पब्लिक अपीयरेंस होगी एंड वो ही यूज्ड टू विजिट सम कैमराज एंड ऑल द फ्लैशी थिंग्स, ये फोटोजेनिक नहीं है। और एक नहीं, शी गॉट द नो 2 times I guess. अच्छा। So my wife did a very extremely good veneers and कुछ दांत पे हमने क्राउन्स भी दिए and we created a very excellent and a very beautiful smile for her. And वही आंटी 3 महीने बाद भाजी लेके लो जी, शादी फिक्स हो गई, शादी की फिक्स हो गई एंड रोका हो गया एंड शी इज गुड टू गेट मैरिड एंड दिस एंड दैट। नाउ हर हस्बैंड, द पेशेंट हरसेल्फ एंड हर एंटायर फैमिली इज माय सारे पेशेंट, पक्के वाले पेशेंट, like I can call must them be really thankful to you. We all were in tears when we completed the case. Like when we got to know, my parents were also, you know, very emotional about the fact, because I have a sister too. So we were all very emotional. और एक नहीं, after that, like n number of cases were solved. Parents बहुत parents कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, but उसका सोल्यूशन है। You have a solution. We have braces to invisible braces भी हैं आजकल, जिसको इनविजिलाइन कहते हैं, अलाइनर्स कहते हैं जिनको। वी हैव क्राउन्स, वी हैव सिरेमिक क्राउन्स, वी हैव विनियर्स, वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो सोल्यूशन है, इफ यू वांट अ सोल्यूशन यू हैव अ सोल्यूशन। बाकी बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी अबाउट व्हाट गॉड हैज गिवन यू। उसके जैसी तो हम, आप जितना मर्जी आप यू गिव अस मनी एंड वी डू दैट काइंड ऑफ वर्क ऑन यू, वो नहीं क्रिएट हो पाएगा। राइट, जो नेचर ने इंटेंड किया है उसको तो हम compete भी नहीं कर सकते, नॉट इवन नियर। सो मेनी ऑफ माई इम्प्लांट पेशेंट्स कहते हैं हमें कि हमने इम्प्लांट लगा लिया तो हम गन्ने छील लेंगे। मैं क्या अंकल आप कुदरती दांत से छीलते से गन्ने कहते नहीं, मैं क्या फिर इम्प्लांट से तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि करिश्मा मत सोचो कि ना सोचो कि हमने जी बहुत ज्यादा कर दी ने। हाँ, आपका ओरल हेल्थ को हम डिग्रेड नहीं होने देंगे, वो व्हाटएवर वाज डन इज डन। उससे ज़्यादा डिग्रेड ना हो तब भी मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी विन-विन है मेरे पेशेंट के लिए। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर इशू आपके साथ बात करके, इतनी सारी आपने नॉलेज दी, मुझे भी कुछ नए टिप्स मिले आपसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो अगर आपको हमारा ये सारा कंटेंट अच्छा लगा और आप चाहते हो कि और भी ऐसी हम वीडियोस लेके आएँ जिसमें कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, राइट इन्फॉर्मेशन आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और ये भी बताओ कि और कैसी एपिसोड्स आप चाहते हो या कैसे कंटेंट्स चाहते हो जिसपे कि हम इंटरव्यू करें और आपके पास नॉलेज लेके आएँ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आएंगे हम अपने अगले एपिसोड पे। थैंक यू।